See, first the Kirtan goes with Shuno he Rasik Jan, Krishna Gun Agana. Suno he Rasik Jan, listen, O those who relish nectarian mallows. First is about Shuno. Srila Bhaktivinoda Thakur is mentioning to whosoever listens him, wherever his sound goes, or whoever is interested in hearing his transcendental instruction, to those he is saying, listen, Shuno. Shuno he Rasik Jan. He Rasik Jan, you are the one who wants to relish the nectarian mallows. Who is there in this material world, does not matter in whatsoever body, who does not want to relish mallow. Everyone wants to relish the nectarian thing, does not matter in whatever shape. Each and every person, what he wants, what is his intrinsic desire, inbuilt desire, to get those things what are very good for you. Everyone's eyes want to see always best things. Everyone ears want to hear nectarian topics and those particular talks which are very soothing for the heart. So each and every person in reality, who is the Rasik? Means who wants to relish the mallow. So he is giving his clear instruction, understanding that, oh those, you are not non-living being, you are a living being, you are Rasik. So I am telling that what is the topmost object where all your senses will be fully satisfied. That is only Krishna. Shuno he Rasik Jan. Krishna Guna Agana. The qualities, the transcendental qualities of Sri Krishna are innumerable, countless. Ananta kahite nahi pare. Even Lord Anant, he is unable to describe it. Anant means unlimited. Here, in which sense it is been spoken? Ananta means a personality who is having unlimited hoods, because he is in the shape of serpent, snake. So that's why he is having, who has millions of hoods and mouths. Because he is having millions of hoods, that's why millions of mouths are there. And he is always glorifying Sri Krishna's qualities. But he is also unable to narrate it completely. Why? Because Krishna is the reservoir of all good qualities. Even Lord Anant cannot describe them all. Then he further mentions Krishna Jagateru Guru. Krishna is the master of the all universes. Krishna is the spiritual master of the entire universe. Krishna Vancha Kalpataru. He is a wish-fulfilling desire tree. Naviku se Bhav Paravare. And he is the navigator, guiding us across the ocean of material existence. We fell down into material, we fell down into which ocean? भाव समुद्र को कैसे अनुवाद करते हैं? ओशन ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस, मटेरियल नेशंस. Here it is mentioned ocean of material existence. But Krishna can guide us how to
cross this ocean, how to reach in transcendental world. Why? Because he is the best guide. He is the spiritual master of the entire world. He is a wish-fulfilling desire tree. If you really desire that I want to cross this ocean, then he will definitely come and help you. Hridaye Pidit Jar Krishna Chikitsak Tar. For those whose hearts are ill, Krishna is the doctor. Hridaye Pidit Jar. Those who are having some pain, some impurities, some disturbance in their heart. Hridaye Pidit Jar. It's not speaking about only physical material disease. Like people say that, oh, I got heart attack, or my arteries are blocked. Not those kind of things. Hridaye Pidit Jar. Those whose hearts are feeling incomplete. Those whose hearts are not satisfied. Those whose hearts are broken again and again in this material world by material people. Those whose hearts are not clean, even though they want to throw away many things, many impurities from their hearts, but unable to do so. For them, Krishna is the best doctor. He can give such a medicine by which the heart can become completely clean. Everything, whatever undesirable things are there in the heart, can go away forever. For those whose hearts are ill, Krishna is the doctor. Yes, you can explain like this? Huh? Yes. First this, then this, then this, then this. Bhavaroga Nashite Chatur. He is expert at destroying the disease of material existence. Okay. We're under the ropes of material nature. The three modes of nature are binding us since time immemorial, and Krishna is expert at destroying that bondage, that addiction. Krishna Bahir Mukha Jane. Verse 2. Premamrita Vitarane. By distributing the nectar of prema to all those who are adverse to him. How will we give up the inferior things is by getting something that's superior. So, like Prabhuji said, that Krishna is the only one who can satisfy all of our senses. That's the nature of our material senses. And lust is that we're never satisfied, always wanting more. But Krishna, through this nectar of prema which he's distributing, he captures the heart even of people who are adverse to him. Prame loy nija anta pura. He gradually takes them to his confidential realm. He's that guide who can take us back to him. Not that we can go there on our own. Like, we wouldn't know about Krishna, we wouldn't know what's anything or where to go. Actually, we're helpless here, and by chanting this Maha Mantra, we're calling out to him that he can bring us back. And actually, he wants us back much more than we want to go there. He's calling us back. It's not that really we're calling him. He gradually takes them to his own confidential realm.
back to Goloka Vrindavan, his abode, his eternal abode in the spiritual world, which is the topmost planet in the spiritual world. Gradually. Well, he's a doctor, and their hearts are ill, and they're very, very ill since infinite time, so it's a process that takes time. It's not just something that can happen immediately. But bhakti is so powerful, this process is so powerful, it's the fastest way. Once I heard Srila Prabhupada explain it, like, you can go up the 100-floor building by taking the stairs, but bhakti is like taking the elevator. क्या बता रहे हैं बता रहे हैं कि इस प्रकार हम अनंत समय हुए हम जन्म जन्मांतर के रोग से पीड़ित हैं और उस रोग से पीड़ित हैं, लेकिन कृष्ण हमारे को वो लेने आते हैं। ऐसे नहीं कि हम कुछ चाहते हैं या हम चाह रहे हैं, कृष्ण नीचे आते हैं और वो इस प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करा के हमारे को वहाँ लेके जाते हैं अपने अंतःपुर में। तो फिर वहाँ पे बताया कि कैसे ये प्रोसेस है, लेकिन ये बहुत पावरफुल प्रोसेस है, बहुत शक्तिशाली ये प्रोसेस है, जिसको श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे हम अगर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसमें कई सारे फ्लोर हैं, उसमें 100 फ्लोर हैं, उन 100 मालों को हम या सीढ़ियों से चढ़ सकते हैं, लेकिन जो भक्ति का प्रोसेस है वो ऐसे जैसे हमारे को लिफ्ट से हम फ्लावर माले पे जा रहे हैं। तो उस प्रकार से प्रोसेस जो है ये वो ही प्रोसेस है, सारे फ्लोर हम पास कर रहे हैं, लेकिन वो ही स्पीड अप हो जा रहा है क्योंकि ये प्रोसेस इतना प्योर और स्ट्रॉन्ग जो समय लगेगा। क्या किया ग्रेजुअली का अर्थ क्या है? ग्रेजुअली का अर्थ है कि सारे जो स्टेजेस हैं धीरे धीरे जो हम उनके आदत करते हैं साधु वो सारे जो स्टेजेस हैं उनको धीरे धीरे पार करते हुए साधु करते हुए व्यक्ति उसमें बताना है। जो उदाहरण देते हैं उसी के साथ में बताना कि जब हम लिफ्ट से भी जा रहे हैं तब भी फिर जो है नीचे से बहुत ऊपर तक 1 सेकंड में भी पहुँच जाए, उसमें भी कुछ समय लगेगा। उसी का नाम क्या है? क्रमशः पहुँच, स्टेप बाय स्टेप। एकदम से लिफ्ट में भी जाने से उसमें भी कुछ समय काफी लगेगा। इसी प्रकार से बोल रहे हमारा हृदय जो है वो बहुत अधिक घोषित है और उसको यद्यपि कृष्ण जो है उस हृदय के रोग को ठीक करने के लिए सबसे बड़े वैद्य हैं, चिकित्सक हैं, किंतु क्योंकि हमारा रोग जो है वो बड़ा पुराना है तो इसीलिए क्या होता है, समय लगता है। और साथ ही साथ में केवल डॉक्टर के औषधि देने से ही काम नहीं चलता। सबसे अच्छी औषधि डॉक्टर लेकर के आ गया, उन्होंने दे भी दिया, किंतु आप उसके साथ साथ में और जो सावधानी बरतनी है, यदि वो नहीं बरतते तो क्या होएगा, फिर वो रोग दूर नहीं जाएगा। तो इसलिए वो भी अपनी आप से साथ साथ में करना। पहले वाले श्लोक में क्या बता दिया था कि कृष्ण जो हैं वो उनके गुण हैं अनंत, इसलिए और कृष्ण ही जगत के गुरु हैं, कृष्ण ही वांछा कल्पतरु हैं। कृष्ण जगत गुरु हैं, इसीलिए उनके जो शुद्ध भक्त वो भी जगत गुरु कहलाते हैं। कृष्ण वांछा कल्पतरु, कृष्ण वांछाओं को पूर्ण करने वाले हैं, इसीलिए ही समस्त वैष्णवों को वांछा कल्पतरु कहते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण के ही सारे गुण उनके भक्तों में संचरित होते हैं, इसलिए वो भी क्या बन जाते हैं, वांछा कल्पतरु। वो भी क्या बन जाते हैं, जगत गुरु। क्यों? क्योंकि कृष्ण ही उनके जो आराध्य देव हैं वही क्या है, वांछा कल्पतरु भी हैं, जगत के गुरु भी हैं। और वो क्या करते हैं, कृष्ण नाविकों से भव पारावारे, बहुत अच्छी तरह से
नाव को चलाना जानते हैं, और इतना बड़ा जो भव समुद्र उसको पार कराने में वही समर्थ है, और कोई समर्थ नहीं हो पाता। कहाँ किसी में इतना बल। इसलिए कृष्ण और कृष्ण के जो निज जन, उन्हीं में ही क्या है, ऐसे वाला बल है, वो हमें क्या करा सकते हैं, भव समुद्र से पार। जो अनुवाद करते हो उनको अनुवाद कर दो, वो सुन लेंगे। फिर आगे बता दिया, हृदय पीड़ित जार, जिनका हृदय पीड़ित है। हमारे हृदय में अनेक प्रकार की पीड़ा है, अगर हम उसको ठीक से देखने बैठे तब पता चलेगा। तो जो देखते हैं उनको फिर जो उसका चिकित्सा कराने के लिए किसके पास जाना पड़ता, कृष्ण के पास। हृदय पीड़ित जार कृष्ण चिकित्सक तार, श्री कृष्ण ही उनके चिकित्सक हैं। भव रोग नाशिते चतुर, भव रोग का नाश करने में श्री कृष्ण ही क्या है, सबसे अधिक एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट श्री कृष्ण ही है। इसलिए वो क्या करते हैं, कृष्ण बहिर्मुख जन, जो उनसे बहिर्मुख है, उनको उनकी ओर नहीं देखता, उनकी बात नहीं सुनता, उसको प्रेमामृत वितरण, उसको प्रेम रूपी अमृत का वितरण करने लगते हैं। ये भाई एसी बंद कर दो, तो बहुत ठंडा है एकदम से। कृष्ण बहिर्मुख व्यक्तियों में प्रेम रूपी अमृत का वितरण करने लगते हैं। तभी क्या होता है, उस अमृत को पान करते करते एक व्यक्ति का जो रोग है हृदय का, वो रोग दूर होता जाता है, और फिर कृष्ण उसको अपने अंतापुर में ले जाते हैं, अर्थात अपने गोलोक वृंदावन धाम में, वहां पर ले जाते हैं। क्रमशः लेकर के जाते हैं, एक ही मुहूर्त में उसके रोग को ठीक करके साथ ही साथ में नहीं लेकर के चले जाते। क्या उनमें इतना बल नहीं है कि एक ही मुहूर्त में वो ठीक कर दें? कोई ऐसा चमत्कार करे, जादू की छड़ी कोई फेर दे, जिससे कि एक ही मुहूर्त में व्यक्ति पहुंच जाए? तो कहते नहीं, उनके भीतर में ऐसे वाला पूर्ण सामर्थ्य होने पर भी वो नहीं कर सकते, क्रमशः ही लेकर के जाते हैं। इसलिए सभी एक व्यक्ति जो है उसके स्वस्थ अवस्था का वो वास्तविक रूप में आस्वादन कर पाता है, तभी वास्तविक अवस्था का आस्वादन कर पाता है। इसीलिए श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी ने भी अपने एक प्रबंध में लिख करके रखा कि गुरु के भीतर में यद्यपि ऐसा सामर्थ्य होता है कि वो किसी के भी अनर्थों को एक मुहूर्त में सारा दूर करके उसको शुद्ध भक्त बना सकते हैं, किंतु तब भी ऐसा कार्य करने में उनकी स्वाभाविक रुचि नहीं होती, चमत्कारमय क्रिया करने में। क्यों? क्योंकि अन्यथा जो साधक वो उस वस्तु का आदर नहीं कर पाता, उसका आदर नहीं कर पाता। साधारण उदाहरण देते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति को यदि अथाह संपत्ति बिना कोई परिश्रम किए किसी बहुत धनी परिवार में जन्म लेने मात्र से जब मिल जाती है, तब वो उस संपत्ति का आदर करना नहीं सीख पाता, उस संपत्ति को कैसे अर्जित करना होता है ये उसको नहीं आता। और जो नीचे वाली अवस्था में होते हैं उनके प्रति उसका कोई सहानुभूति, उसके भीतर में कोई सेंसिटिविटी नहीं होती। इसीलिए क्रमशः उसको अग्रसर करके ले जाते हैं। जमीन से जुड़ा हुआ होने के कारण वो फिर सभी के ही दुख दर्द को समझता, अनुभव करता है,
और फिर उनका बहुत अच्छा सहायक वो बन पाता है, सब कुछ रिलेट कर पाता है। इसलिए क्रमे लय निज अंतापुर। नहीं तो क्या होता है, ये वाली भूल करता हूँ, उस वैद्य के पास जाऊंगा, जादू की छड़ी फेरेंगे, ठीक हो जाऊंगा। अपने जो चित्त का विकास, भूल करने की प्रवृत्ति को दूर करना, ये वाला व्यक्ति का नहीं हो पाता। आगे बताया कीर्तन में, कर्म बंध ज्ञान बंध आवेशे मानव अंध। इस जगत में एक बार आने पर व्यक्ति का जो आविष्टता है, उसका दिमाग सब समय क्या सोचता है, आंखें क्या चाहती हैं, कान क्या चाहता है, वो आविष्ट रहता है। बहुत सारी वस्तुएं निकट में हैं, देखने पर भी उसको दिखाई नहीं देती, सुनने पर उसको सुनाई नहीं देती, स्पर्श करा देने पर उसको उसका अनुभव नहीं होता। कब? जब वो किसी वस्तु में आविष्ट होता है। जैसे हमारे महाराज जी उदाहरण देते थे, धीरू प्रभु इधर बैठो, कि कोई एक लड़का, युवक किसी युवती को देख करके बहुत आकर्षित, उसके साथ में मित्रता कर दी, अभी उसके रूप के प्रति ही आकर्षित है, उसका और कुछ वो आगे पीछे का इतिहास कुछ जानता ही नहीं, ना प्रयास करता उसको समझने का, सोचने का, चरित्र कैसा इसका, इसने क्या किया क्या नहीं किया, किसी तरफ उसका चित्त नहीं जाता। वो उसमें पूरी तरह से आविष्ट हो गया। वो जो बोलती है वही करता, जो खाने के लिए कहती है इसको अपने आप वही अच्छा लगने लगता, जो पहनने के लिए बोल देती है वही इसको लगता, हाँ इससे अच्छा और क्या होगा। उसमें ऐसा आविष्ट हो गया, वो इसको अपनी उंगलियों पर नचाती है, और माता पिता भाई बंधु जो कुछ भी बोलते हैं, ये सुनने पर भी सुनता नहीं, कहने पर भी मानता नहीं। क्यों? क्योंकि इसका क्या हो गया, अभी आवेश हो गया है, उसका उसमें कोई कमी है ये स्वीकार कर ही नहीं पाता, उसमें दिखाई देने पर भी चीजों को देख नहीं पाता। क्यों? क्योंकि आवेश हो गया है। और इसी आवेश में उसका कितना समय चला जाता, और वो क्या क्या कर बैठता, क्या क्या दे बैठता, उसको पता ही चलता नहीं। और जिस समय उसका जो आवेश ये भंग होता है, उस समय फिर क्या होता है, उस समय हाय तौबा करता। मेरे को किसी ने कहा भी था पहले, मैंने ध्यान ही दिया नहीं, किसी ने मेरे को पहले से वार्न किया था, मैंने सुना तक ही नहीं था। क्यों? मैं क्या था, आविष्ट था उस समय। इसी प्रकार से कह रहे हैं कि कर्म बंध ज्ञान बंध आवेशे मानव अंध। मनुष्य जो है वो कभी तो कर्म के बंधन में, कभी ज्ञान के बंधन में पड़ करके, ये उस लड़की के बंधन में पड़ गया तो प्रेम का बंधन, देह का रूप का बंधन, उसी में बंध गया। इसी प्रकार से कर्म के बंधन में, ज्ञान के बंधन में बंध करके एक व्यक्ति, उसमें कितना समय उसका चला जाता, कभी कभी तो जन्म जन्मांतर चले जाते, वो अपने आवेश में से निकल ही नहीं पाता, स्वस्थ नहीं हो पाता। स्वस्थ व्यक्ति की तरह देखना सुनना उसका नहीं हो पाता। सारे कृष्ण करुणा सागर, ऐसे व्यक्ति के प्रति कृष्ण जो है करुणा के सागर बन करके उसके उस जो आवेश को वो दूर कराते हैं क्रमशः, कि किस तरफ बहे जा रहे हो तुम, क्या करते जा रहे हो तुम, थोड़ा सा बैठ करके सोच लो। उस स्थिति में एक व्यक्ति को लाके खड़ा करते, जैसे एक राजा थे, चोल राज, दक्षिण भारत में, उनकी कन्या, उसको प्रेत ने पकड़ लिया, और वो युवती विवाह होने वाला था, किंतु उससे पहले प्रेत ने पकड़ लिया। अभी
वस्त्र पूरे उतार देती है, सभा में दौड़ पड़ती है, पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है, उसका आवेश हो गया। किसका? प्रेत का। प्रेत उससे जो कराता वही करती है। इसी प्रकार से वो प्रेत का आवेश जो है कैसे छूटा उसका? रामानुजाचार्य जी के चरण का जल जब उसको मिल गया, पान किया, प्रेत का उद्धार हो गया, तब एकदम से अपने आप को देख करके बड़ी लज्जित, जो मैं नग्न अवस्था में एकदम घर के भीतर में दौड़ पड़ी कपड़े पहनने के लिए, बड़ी लज्जित हुई। पहले तो लज्जित नहीं हो रही थी, पहले तो वैसे घूम रही थी, पेड़ पे चढ़ रही थी सबके सामने। क्यों? क्योंकि उस समय क्या था? प्रेत का आवेश था। इसी प्रकार से हम लोगों के ऊपर कर्म का, ज्ञान का ये जो आवेश, ये ऐसे वाला रहता, कितने कितने जन्म चले जाते। जो सारी चीजें मेरी नहीं वही मेरी मानता हूँ, जो मेरे किसी काम की नहीं उनको संग्रह करता हूँ। सारे कृष्ण करुणा सागर। कृष्ण ऐसे वाले व्यक्तियों के प्रति जैसे रामानुजाचार्य जी ने कृपा किया वो चोल राज की कन्या के ऊपर, उसी तरह से कृष्ण करुणा के सागर वो क्या करते हैं? पाद पद्म मधु दिया, अपने चरण कमलों का अमृत प्रदान करके, जैसे रामानुजाचार्य जी ने दिया। पाद पद्म मधु दिया, अंध भाव घुचाइया, इसके अंधेपन को दूर करते हैं। कैसे कैसे अंधा है ये? आंखें हैं किंतु आंखें नहीं है, ये जड़ जगत वाली आंखें हैं, उसके चित्त जगत वाली, जो चित्त स्वरूप वाली, उसके अपने आत्म स्वरूप वाली जो आंखें हैं वो पूरी तरह से अंध, इसने उसके ऊपर कुछ पर्दा चढ़ा करके बंद किया हुआ। उसी को क्या करते हैं? वो उसको खोलना प्रारंभ करते हैं। किसके द्वारा? अपने चरण के मधु को, अमृत शहद को प्रदान करके। वो क्या करता है? औषधि का कार्य करता है, वो औषधि बन जाती है, आई ड्रॉप, आंखों को ठीक करने के लिए, उसके अंध भाव को हटाते हैं। चरणे करेन अनुचर, उसको अपने चरण कमलों का अनुचर बना लेते। विधि मार्ग रत जने स्वाधीनता रत्न दाने, राग मार्गे कर अनुप्रवेश। पहले एक व्यक्ति को क्या कराते हैं? शास्त्र के विधि अनुसार चलाते। जिसका बीमारी है उसके लिए क्या होगा? कुछ खाना है, कुछ नहीं खाना है, कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, उसके लिए विधि है, क्योंकि वो अस्वस्थ है। उसके लिए क्या बोलते हैं? औषधि और पथ्य, दो चीजें। एक औषधि खाएगा, दूसरी तरफ से आहार जो करना वही वाला करना। जब स्वस्थ हो जाता है व्यक्ति तब क्या करना पड़ता? जैसा इच्छा वैसा आहार करो और औषधि का आवश्यकता ही नहीं। दोनों ही तो हो जाता है। अस्वस्थ होने पर औषधि खाओ और परहेज करो। जब स्वस्थ हो गए तब क्या है? औषधि पूरी तरह से बंद, और जो परहेज है वो भी अब तुम्हारे लिए नहीं है, तुम तो स्वस्थ हो। जो ग्रहण करोगे होना क्या चाहिए? आहार वाली वस्तु, उसी को ग्रहण करने से तुम्हारा कोई असुविधा नहीं। उसी प्रकार से कह रहे हैं, वो क्या कर देते हैं? पहले विधि निषेध के अंतर्गत रखते हैं श्री कृष्ण, फिर उसके बाद में उसको जब देख लेते इसका रोग पूरा ठीक हो गया, फिर उसको स्वाधीनता रत्न दान, उसको स्वाधीनता दे देते। अब तुम्हारी जो इच्छा तुम ऐसा करो। इस प्रकार से वो व्यक्ति फिर क्या करता है? उसको राग मार्ग में प्रवेश करा देते। राग वशवर्ती है, पार किया भावाश्रय, लगे जीव कृष्ण प्रेमावेश। अब उसका जो ज्ञान कर्म आवेश, उसका जो ज्ञान आवेश वो तो पूर्ण रूप में समाप्त हो जाता है। उसका कौन सा आवेश आ जाता? अब कृष्ण प्रेम आवेश। वो अब कृष्ण प्रेम के वशीभूत होकर के ही सारे काम करता है। जैसे वो चोल राज की कन्या पहले प्रेत के आवेश में उसके कहे अनुसार सारा काम करती थी। जब स्वस्थ हो गई, जब रामानुजाचार्य जी का चरण अमृत मिल गया, प्रेत वाला आवेश चला गया। अब कौन से वाला आवेश आ गया फिर? कि मैं कौन हूँ? राजकुमारी। राजकुमारी वाला आवेश आ गया। अब उसमें अपनी आप से ही
जो कार्य करने होते वो करती है। उसी प्रकार से जीव का जो स्वाभाविक जो उसका स्तर है, भूमिका है, वो क्या है? वो कृष्ण प्रेम में ही आविष्ट रहता है। उसी अवस्था को एक व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। प्रेमामृत वारी धारा सदा पान रत तारा, कृष्ण सहादेर बंधुपति। अब वो क्या बन जाता है फिर? ब्रज जन। कृष्ण उसको वहां तक ले गए, अपने पास में रख लिया, अब वो ब्रज जन बन गया। ब्रज जन बनने पर वो उसको सब समय क्या मिलता है? प्रेमामृत धारा, प्रेम अमृत वारी धारा, कृष्ण के चरण कमलों का, कृष्ण के मुखमंडल का, कृष्ण का प्रत्येक प्रकार का जो कृपा वो उसको प्राप्त होता रहता है और सदैव उसी को पान करते हैं। कृष्ण सहादेर बंधुपति, कृष्ण उनके एकमात्र बंधु, कृष्ण एकमात्र उनके पालक, वही सब कुछ बन जाता। से सब ब्रजजन सुकल्याण निकेतन। ऐसे वाले जो ब्रजजन ये क्या है? सुकल्याण निकेतन। ये ऐसे वाला एक निकेतन है, ऐसे वाले एक सदन है, ऐसे वाला एक ये घर है, ऐसे वाले एक ये व्यक्ति हैं जो सब प्रकार के कल्याणों की खान, सुकल्याण निकेतन, समस्त प्रकार के कल्याण उन्हीं के चरण कमलों में ही वास करते हैं। ते सब ब्रजजन सुकल्याण निकेतन, दीनहीन विनोदेर गति। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं यही मेरी एकमात्र गति है। मेरी गति है मतलब इन्हीं के चरण कमल ही मेरे को इस मार्ग की ओर चलने के लिए सहायक बनते हैं। गति का अर्थ होता है स्पीड, गति का अर्थ होता है चलना। यही क्या है? मेरी गति है, अर्थात इनको देख करके ही मेरे में इंस्पिरेशन आती है। इन्हीं के देख करके ही, इन्हीं की कृपा से ही मैं क्या करता हूँ? ब्रज की ओर चल पड़ता हूँ। इस कीर्तन में इस प्रकार का छोटा छोटा भावना जो है वो भर करके रखता है।